हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे अपने अपने घरों पर। और मेरे बताए गए वीडियोस में आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में बात की थी। तो आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो एज यू नो, we have discussed some very basic questions of trigonometric ratios in the previous video. Then in today's video we are going to discuss some more interesting questions which are different in way, but yes, concept will remain same. अगर आपको ये वीडियो देखना है जो कि मैं आज आपके सामने लाया हूं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा तो आप इससे पहले पुराना वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। बिकॉज जब तक आप किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझेंगे, उसके बेस को नहीं कैच करेंगे, तब तक आप उस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो आई होप सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू शुड watch the basic trigonometry video, then you will come to this video. So without any late, let's start today's video. So as we have discussed, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था डायग्राम क्वेश्चंस, जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। यू गॉट अ ट्रायंगल इन द डायग्राम एंड सम साइड्स आर गिवन विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम you can find the other sides, then apply the trigonometric ratios formula. That is the reason why trigonometry is only applied in right angle triangles, because we have to measure three sides. As I told you in my previous video, what is the meaning of trigonometry? The measurement of right angle triangles, that is known as trigonometry. So but in today's video, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना बताने जा रहा हूं जिनमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो इन क्वेश्चंस में सबसे पहला जो मैंने चूज किया है दैट इज sin A is equal to 3/5 given, find the all other trigonometric ratios. We have this question in front of us. इस क्वेश्चन में हमें, बिकॉज वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन दो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एनी वन कैन बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर हमें किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी जाए और हमसे बाकी के सभी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे जाएं, तो हम क्या मेथड यूज करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, फॉर्मूला फॉर साइन ए इज perpendicular upon hypotenuse. The basic formula for sin A is this, and the value of sin A is given 3/5. So if you compare these two quantities of sin A, so you can say that perpendicular upon hypotenuse is equal to 3/5. So basically from this relation we got ratio between perpendicular and hypotenuse. Now we can consider, let the value of perpendicular be 3a and the value of hypotenuse be 5a. Now in the second step we are going to apply Pythagoras theorem, because for finding all the other trigonometric ratios we need all the three sides, perpendicular, hypotenuse and base. So basically perpendicular and hypotenuse we have, but we don't have base in this question. That is why we are going to apply Pythagoras theorem first. We find the value of base. So the value of hypotenuse is 5a, the value of perpendicular is 3a, and b we have to find. So it will become 25a square is equal to 9a square plus b square. So 25a square minus 9a square is equal to b square. 16a square is equal to b square. The value of b is coming under root 16a square, which means 4a, which means the value of base has come 4a. Now we can very easily find all the other ratios. Cos a, formula will be base upon hypotenuse. Base is 4a. Hypotenuse is 5a. A will be cancelled out. So the answer for cos A will become 4/5. After that we can find tan A also.
The formula is perpendicular upon base. Perpendicular is 3a, base 4a. Again a will be cancelled out, so the answer is 3 by 4. After that we have to find cosec a. We know very well cosec is the just reciprocal ratio of sine, so we can say as hypotenuse upon perpendicular. Basically it will become 5 by 3. After that sec a formula, hypotenuse upon base. The value of hypotenuse 5a, value of base 4a. When you will cancel out, 5 by 4. After that cot a you have to find. The value of cot a is base upon perpendicular, so the value of base 4a, perpendicular 3a. The answer will be 4 by 3. So we have found all the 5 other trigonometric ratios. So ये तरीका है किसी भी क्वेश्चन में जिसमें कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा और बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होंगे. और मैं आपको बता दूं, अभी क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री का बेस पढ़ रहे हैं तो हम ये तरीका यूज कर रहे हैं. जब आप इसी ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक में थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपको आइडेंटिटीज की नॉलेज भी प्रोवाइड की जाएगी, तो यही वैल्यूज बिना इस कैलकुलेशन के भी फाइंड की जा सकती है. But right now we are going to discuss the basics, so this method will be the perfect. So ये तरीका होता है, ध्यान रखेंगे आप. आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, चाहे वो साइन हो या कॉस हो या कोई भी दूसरा रेशियो हो, आपको सबसे पहले उसका बेसिक फॉर्मूला सोच लेना है. उसके बेसिक फॉर्मूले को उस वैल्यू के इक्वल रख देना है. वहां से आपको उन दोनों साइड्स का रेशियो पता चल जाएगा. पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तीसरी साइड आप निकाल लोगे. आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई ऑल द फॉर्मूले एंड यू विल गेट द वैल्यूज. तो ये था आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन कि किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकालें विदाउट यूजिंग डायग्राम. क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है, डायग्राम की जरूरत तब पड़ती है जब हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज होता है. क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ रेफरेंस ए है और पूरे क्वेश्चन में वो एज इट इज रहा है. दैट इज व्हाई वी डोंट नीड डायग्राम. डायग्राम इज कंपल्सरी व्हेन द एंगल ऑफ रेफरेंस विल चेंज. सपोज द वैल्यू ऑफ साइन ए इज गिवन एंड द वैल्यू ऑफ कॉस सी हैज बीन आस्क्ड, देन यू कैन नॉट डू विद दिस मेथड, देन द डायग्राम विल कंपल्सरी. सो हमें यह भी आइडेंटिफाई होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि कब हमें डायग्राम की जरूरत होगी, कब हमें डायग्राम की जरूरत नहीं होगी. वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं. अब मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो लॉजिकली तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह होगा, लेकिन उसमें आपको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं दूंगा मैं. बिकॉज मैंने अपने टीचिंग करियर में ये कई बार देखा है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जब वैल्यूज दी रहती हैं तो उनका सॉल्यूशन करने में वो उतना घबराते नहीं हैं. लेकिन जब वैल्यूज नहीं दी होती हैं किसी क्वेश्चन में, वेरिएबल्स दिए रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को करते समय वो काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तो मैं आपको बता दूं, आपको अनकंफर्टेबल होने का रीजन ये है कि बिकॉज आपको अपने मैथमेटिकल बेसिक्स पर कॉन्फिडेंस नहीं है. That is why you are just uncomfortable with those questions. Otherwise, the concept is very same. Now, the question is, suppose cos A is written P upon Q. Find all the other trigonometric ratios. Question बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसा मैंने अभी आपको बताया. बस यहां पर डिफरेंस क्या है, हमें कोई भी नंबर नहीं दिया गया है, दोनों ही वेरिएबल है. cos ए की वैल्यू p बाई क्यू है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने. तो देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही हम शुरू करेंगे. cos ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई p अपॉन क्यू. इसका मतलब क्लियर है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो है p अपॉन p रेशियो q. तो यहां से आप लेट कर सकते हो, लेट base is equal to px and hypotenuse is equal to qx, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. सेकेंड स्टेप पर आते हैं और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. h की वैल्यू, हाइपोटेनस की वैल्यू qx, तो यहां आ गया qx होल स्क्वायर. परपेंडिकुलर निकालना है और बेस की वैल्यू px, तो px स्क्वायर.
तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर, और ये पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब हम इस वैल्यू को यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगी। अब हम देख रहे हैं इन दोनों ही नंबर्स में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। अगले स्टेप में हमें इस पूरे पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, ना कि परपेंडिकुलर स्क्वायर की। जब आप इस अंडर रूट को सॉल्व करोगे तो एक्स अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बिकॉज यहां पर सेपरेट स्क्वायर्स हैं। अगर यहां होल स्क्वायर होता इस तरह, अगर q माइनस पी होल स्क्वायर होता तो ये भी स्क्वायर रूट के साइन के बाहर आ जाता, बट दीज आर द सेपरेट स्क्वायर्स एंड बिटवीन देम देयर इज अ नेगेटिव साइन, सो ये बाहर नहीं आ सकता। एक्स स्क्वायर एक्स बनकर बाहर आ जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब देखिए साइन ए, फॉर्मूला साइन ए का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स, अंडर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्यू एक्स। सिंपली एक्स हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनली साइन ए की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। ये हमारे साइन ए का आंसर। कुछ भी हमें अलग से नहीं करना है, सारे स्टेप्स हमें बिल्कुल वैसे ही फॉलो करने हैं जो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया होता था क्वेश्चन में तब फॉलो करते थे। तो आपको कहीं घबराना ही नहीं है, बल्कि इन क्वेश्चंस में आप ये श्योरिटी मान सकते हो कि कैलकुलेशन रिलेटेड मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। इसी तरह tan a निकालते हैं। tan a का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है x अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बेस की वैल्यू है px। अगेन x विल बी कैंसल्ड, अंडर रूट के अंदर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में p। इसी तरह cosec, cosec रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो इसी वैल्यू को जस्ट हम उल्टा कर देते हैं, q अपॉन अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ये जरूरी भी नहीं है कि आप सब में फॉर्मूले ही लगाएं, p अपॉन एच, p अपॉन बी, यहां पर भी h अपॉन p, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको ये नॉलेज हो गई, इफ यू नो very well that the cosec a is the reciprocal of sin a, so you can just write the reciprocal value of sin a. Sin a is this, so we have just written the reciprocal. After that sec a, sec a reciprocal होता है cos का, तो simply sec a की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन p। और आखिरी रेशियो cot a, ये रेसिप्रोकल होता है tan a का, तो p अपॉन अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ना देने के बावजूद हमने बहुत ही आसानी से सभी पार्ट्स को फाइंड कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है तो वो क्वेश्चन टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है, उसको सॉल्व करने में मुश्किलें आती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, rather than you have to be very firm on your concepts। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे मेरे पहले के दो क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिसाइड किया है। इसमें हम लोग डायग्राम के साथ साथ थोड़ा सा लॉजिकल एबिलिटी रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी बेटा ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बहुत ही छोटे क्वेश्चंस को तो आराम से लर्न कर सकते हो, मतलब अगर आपके लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी कमजोर भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये मैंने जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जो अब आपके साथ जिंदगी भर साथ रहेगा जब तक आप साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ते रहोगे। तो ऑब्वियसली यहां पर कुछ लॉजिकल पॉइंट्स भी होते हैं। तो अब मैंने कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन उठाया है, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से डायग्राम और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। ये एक डायग्राम है, ट्रायंगल ए बी डी और सी। ये एंगल x है, ये एंगल y है, और ये 90 डिग्री हमें गिवन है। द वैल्यू ऑफ AC 26, CD 10, BC 42, और ये दो एंगल्स गिवन है। फाइंड हमें क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहली वैल्यू cot x, दूसरी वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर y, और थर्ड पार्ट में फाइंड करना है 6 अपॉन कॉस x माइनस 5 अपॉन कॉस y एंड प्लस 8 tan y। तो अब इस क्वेश्चन को देखें हम कैसे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ फॉर्मूले आपके पढ़ लेने से आपको नहीं आ जाएगी, आपको एंगल ऑफ रेफरेंस की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो,
कई जगहों पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद x लिखा है और कई प्लेसेस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बाद y लिखा है, विच मीन्स if you have not knowledge of angle of reference, if you don't know how to observe the triangle, then you will definitely make this question wrong. तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट पे, क्योंकि इसमें सभी पार्ट्स निकालने का कोई फायदा नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले पार्ट में आते हैं जिसमें हमें cot x निकालना है। cot x, तो जैसा कि हम देख रहे हैं x एंगल है ट्रायंगल ACD में, तो जो भी वर्किंग होगी वो ट्रायंगल ACD में होगी। ACD में 90 डिग्री यहां पर है और x एंगल यहां पर है, तो ट्रायंगल ACD में जो परपेंडिकुलर होगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, अगर आपको परपेंडिकुलर डिसाइड करना है तो वो एंगल ऑफ रेफरेंस के जस्ट ऑपोजिट साइड को कहते हैं। तो परपेंडिकुलर हो गया CD, हाइपोटेन्यूज हो गया AC और बेस हो गया AD, ये तीन साइड्स हो गई। अब हम चेक कर लेते हैं, मैं मालूम क्या क्या है। AC की वैल्यू 26, तो चलिए हाइपोटेन्यूज दिया है 26, CD की वैल्यू 10, मतलब परपेंडिकुलर दे दिया गया 10। अब सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां हो गया 26 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें दिया नहीं है, निकालना है, और बेस इसका मतलब हो गया c, बेस हमें निकालना है AD, परपेंडिकुलर दिया है 10 स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, ये आएगा 676, 100 प्लस b स्क्वायर, 676 माइनस 100 इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 576, जो कि स्क्वायर रूट में 576 बन जाएगा और फाइनल आंसर हो जाएगा 24, मतलब बेस की वैल्यू आ गई 24। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता है, 26, 24 एंड 10। फॉर्मूला फॉर cot x, cot का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और x के रिस्पेक्ट के लिए बेस क्या है 24, तो बेस के प्लेस पर रख दिया 24 और परपेंडिकुलर है 10। सॉल्व किया 12/5, ओवरऑल इसे मिक्स फ्रैक्शन में हम कह देंगे 2 होल 2/5। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। अभी सिर्फ हमने पहला पार्ट सॉल्व किया है, और यहां पर आप पार्ट्स को डिफरेंटली सॉल्व करोगे तभी आपके लिए ठीक रहेगा, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। सो पहले पार्ट के लिए हमें x एंगल दिया गया था, इसीलिए हमने ये ट्रायंगल का यूज किया, ट्रायंगल ACD। चलिए अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में जैसा कि हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए और वो भी y के टर्म्स में, इसका मतलब क्लियर है। अब हमें अपना ट्रायंगल जो है वो चेंज करना होगा। अब हम सेकेंड पार्ट की वर्किंग के लिए ट्रायंगल ABD लेंगे। ट्रायंगल ABD में जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो पूरी साइड है BC, ये 42 दी गई है, और BC को हम डायग्राम के अकॉर्डिंग BD प्लस DC लिख सकते हैं, जिसमें से BD की वैल्यू नहीं पता है और DC की वैल्यू है 10। तो यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो BD की वैल्यू आ गई 42 माइनस 10, जिसको हम लिख सकते हैं 32, और AD की वैल्यू हमें पता है 24, और हमें AB नहीं पता है। अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ABD की, तो उसमें ये जो AB साइड है ये हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव कर रही है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में 32 और बेस हो जाएगा 24, तो 32 का स्क्वायर करा लेते हैं पहले। तो 1024 प्लस 576 प्लस करेंगे 1600, ये आ रही है h स्क्वायर की वैल्यू, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1600, जिसका मतलब है 40। अब हम इस टर्म को लिखते हैं जिसे हमें फाइंड करना है, एक साथ लिख लेते हैं, 1/sin स्क्वायर y माइनस 1/tan स्क्वायर y। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर लगा, इसका मतलब क्या है, साइन y की वैल्यू निकाल के स्क्वायर कर दो, और tan स्क्वायर y का मीनिंग क्या है, द होल स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ tan y। साइन y का फॉर्मूला होता है p/h और tan y का फॉर्मूला होता है p/b। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 24 और हाइपोटेन्यूज कितना है 40। इसी तरह यहां परपेंडिकुलर 24 और बेस है 32। सॉल्व करते हैं, इनको कैंसिल कराएंगे, तो यहां पर आएगा 3/5 और यहां पर आएगा 3/4। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 25/9 और ये बन जाएगा 16/9। सॉल्व कराएंगे 9/9, कैंसिल आउट कराया, फाइनल आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की कंबाइंड वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का था सेकंड पार्ट।
सेकेंड पार्ट के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया एंगल ऑफ रेफरेंस बदल रहा है, तो हमें क्वेश्चन देखने का जो हमारा तरीका है वो भी बदल जाएगा। अगर हम उसे नहीं बदलेंगे तो डेफिनेटली हम आंसर को गलत कर देंगे। तो जैसा कि यहां पर एंगल वाई हो गया था, तो हमने ट्रायंगल एबीडी ऑब्जर्व किया। पहले तो हमारा काम रहता है तीनों साइड्स मालूम हो जानी चाहिए, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाएंगे। तो तीन में से दो हमें मालूम थी, हमें सिर्फ एक ही मालूम थी। पहले एक हमने निकाली मैथमेटिकल ज्योमेट्री का यूज करके, और फिर दूसरी निकाली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। जैसे ही तीनों साइड्स पता चल गई, वैल्यूज प्लेस कर दी, और कैलकुलेशन वर्क में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। यह था सेकंड पार्ट। इसी तरह अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में कुछ एक्स भी हैं और कुछ वाई भी है, मतलब हमें दोनों ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड के लिए पहले मैं टर्म लिख लेता हूं 6 अपॉन कॉस एक्स, 5 अपॉन कॉस वाई, 8 tan वाई। ध्यान दीजिएगा, cos x का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और x के लिए बेस है 24, सो 24 और हाइपोटेन्यूज है 26। 5 अपॉन cos y, अब y के लिए हमें दूसरा ट्रायंगल ऑब्जर्व करना होगा। बेस है इसके लिए BD, और BD की वैल्यू निकली थी 10 था ये 32, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और प्लस 8 इंटू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो भी इस ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर 24 और बेस 32। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज रख दी। सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 26 अपॉन 24, 5 इंटू 40 अपॉन 32, 8 4 जा 32, 4 6 जा, सो ओवरऑल यहां पे सिर्फ 6 बचेगा। 6 4 जा 24, 2 2 जा 4, 2 13 जा 26, 13/2, 5 this cannot be cancelled, we can cancel it by 4 10 जा 8 5 जा 40 and 8 4 जा 32, so 25/4, और यहां से बच रहा है 6। एलसीएम ले लेते हैं, तो 26 माइनस 25 प्लस 24, जिसमें से 26 यानी यहाँ के आंसर 25/4। 26 में से 25 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 1 और 24 प्लस हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 25। यहां से हम लोग 6 होल 1/4। इस तरह हमारा इस कॉन्सेप्ट का, इस एक्सप्रेशन का टोटल आंसर हो गया 6 होल 1/4। तो इस तरह आज के वीडियो में मैंने बेसिकली आपको यह समझाने की कोशिश की है कि किस तरह हम एंगल ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं, और किस तरह हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिनमें डायग्राम नहीं दिया रहता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। सब्सक्राइब और शेयर जितना पॉसिबल हो उतना कर दीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा पाए। और ये वीडियो 9th ICSE 10th CBSE दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।